Hello, good evening, my dear friends. How are you all? As we've already studied that poem, the first part of that My Mother at 66. In that part, I have explained that poem to you, not explained, actually, I have summarized that poem to you, what that poem was all about. So now in this part, I'm going to read this poem out line by line, and I'll explain you what actually poetess wanted to say. So just begin. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me, doors open, mouth her face, and ashen like that of a corpse, and realized with pain. So this whole poem starts with an incident that poetess along with her mother was moving to Cochin airport. And on the way to Cochin airport, she was sitting with her mother at the back seat of the car. And in the meanwhile, her mother went on for a little sleep. When she was sleeping, doze means someone who is just gone to sleep. So when she was sleeping, the poetess looked at her face and found that her face was looking like a corpse. Corpse means dead body. Her face was looking like a dead body. It means she was old enough. Now her face has lost all the charm, all the beauty, and face was very much like weird face. And the poetess felt a kind of pain. Pain was what? What kind of pain? Pain, looking at your parents to getting older and older, means they are moving towards their final stage. And that pain is a heavy pain for a child. Here in this in these lines, when the poetess is saying, ashen like that of a corpse, here she is using simile. She is just comparing her mother's face with a dead body. So use of simile is being shown here. I should use Hindi also. So the first few lines, actually poetess अपनी उस पेन को एक्सप्रेस कर रही हैं, जो पेन उन्हें दिखती है जब वो अपने मदर की फेस को देखती हैं, जो उनके साथ ही कार की बैक सीट पे बैठी हुई हैं, और जब उनके फेस और एक हल्की सी नींद में चली गई हैं, और जब वो उनके फेस को देखती हैं तो उन्हें रियलाइज़ होता है कि एक्चुअली मेरी माँ बहुत बूढ़ी हो चुकी, और इतनी बूढ़ी हो चुकी है कि शायद वो फाइनल स्टेज की तरफ पहुँच रही हैं. ये तकलीफ़ उन्हें उनके मन में पैदा होती है कि शायद जल्दी ही मैं अपनी माँ को खो सकती हूँ. इस बात की पेन उनके मन में पैदा होती है. That she was old enough, as old as she looked, but soon put that thought away and looked out at young. अब उन्हें अपनी माँ के उस चेहरे को देखते हुए, जो लगभग डेड बॉडी जैसा दिख रहा है, उन्हें इस बात का एहसास होता है कि वाकई उनकी माँ बहुत बूढ़ी हो चुकी है. You know, every child who's got attachment with his parent always try to, somewhere in the back of the mind or back of the heart, that their parent should remain with him for a lifelong journey. And it becomes sometimes very difficult to accept that your parents are now getting much older and they are moving towards the final stage. So writer, anyhow, looking at her face, has realized that her mother has really gone very old. तो जब ये एहसास होता है कि मेरी माँ वाकई बहुत बूढ़ी हो गई है, तो वो उनके लिए बहुत पेनफुल होता है, और उस पेन को डाइवर्ट करने के लिए वो क्या करती हैं, स्टार्ट लुकिंग आउट, पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंगिंग, द मर्सी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स. अब वो क्या करती हैं, अपने आप को थोड़ा सा डाइवर्ट माइंड करने के लिए कार के बाहर देखती हैं, खिड़की से झांकती हैं बाहर, और क्या दिखता है उन्हें, नए पेड़, स्पिलिंग आउट ट्रीज में जो नए पेड़ निकल रहे हैं, हरियाली वो दिख रही है, छोटे छोटे बच्चे जो बाहर घरों के बाहर निकल रहे हैं खेलने के लिए, वो दिख रहे हैं. तो एनी हाउ से ट्राई टू डाइवर्ट हर माइंड दैट फ्रॉम द सिकनेस एंड ओल्ड एज ऑफ हर मदर. Anyhow, she is trying to divert her mind and not ready to accept that her mother is towards the final stage. So in this process, she just tried to divert her mind by looking outside the window and by focusing on these trees and the children playing around. On the way towards up to this airport, she anyhow managed to keep this thought away. But once again, when she reached to airport, what happens? But after the airport security check, standing a few yards away, I looked again at her worn pale as a late winter's moon and felt that old.
पूरे रास्ते तो किसी तरह उन्होंने अपना माइंड डाइवर्ट कर लिया, बाहर ध्यान लगा दिया, माँ से मन हट गया, दिमाग से वो बात भी थोड़ी देर के लिए निकल गई कि माँ बहुत बूढ़ी हो चुकी है, उसे कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन जैसे ही वो एयरपोर्ट पे पहुंचती हैं, और आप एयरपोर्ट पे जानते होंगे कि देयर इज़ अ सर्टेन पॉइंट कि वहाँ तक सिर्फ जो सी ऑफ करने गए हैं वो सिर्फ वहीं तक जा सकते हैं, उसके बाद आगे वही जाएंगे जिन्हें आगे ट्रैवल करना है। तो उस पॉइंट पर वो खड़ी होकर के एक बार फिर अपनी मदर को देखती हैं और क्या कहती हैं, लुक्ड अगेन एट हर वन पेल वन एज अ लेट विंटर मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड। अगेन यहाँ पे सिमिली का यूज़ हुआ है। वैन पेल यानी बूढ़े चेहरे को कंपेयर कर रही हैं किससे, विंटर मून से कंपेयर कर रही हैं। अगेन यहाँ पे सिमिली का यूज़ हुआ है। अच्छा, आई जस्ट वांटेड टू एक्सप्लेन द व्हाई डिड द पोएटेस हैज़ यूज्ड ओनली विंटर मून, व्हाई डिड नॉट शी से समर मून? इट्स जस्ट बिकॉज if you look at the moon in the winters, you would find that the brightness is bit dim, just because some fog is there in the air now. So the brightness doesn't come out like in summer's moon. Moon doesn't change, moon remains same. But this brightness of moon is very clear during summer. But when it comes to winter, it's a little pale, little dim. So that's why the poetess has actually compared this moon with winter's moon, not with the summer moon. तो वहाँ पर वो फिर वो बात कह रही हैं कि जब मैं एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी चेक पर पहुँचती हूँ, फिर से मेरा ध्यान एक बार अपनी माँ के बूढ़े चेहरे की तरफ जाता है और मुझे फिर से वही चीज़ याद आती है कि मेरी माँ बहुत बूढ़ी हो चुकी है और शायद मैं अब यहाँ से जा रही हूँ और लौट कर आऊँ शायद ना भी मिले। वो फिर से एक बार उनके दिमाग में वही पेन, वही तकलीफ़ फिर से पैदा हो जाती है। Familiar ache my childhood's fear, but all I said was see you soon अम्मा, all I did was smile and smile and smile। और फिर से लास्ट पैराग्राफ में वो बोल रही हैं कि मेरे दिमाग में वो फिर से वही पेन आ जाता है, वही चाइल्डहुड फियर आ जाता है जो बच्चों में होता है कि पेरेंट्स उनसे दूर नहीं होने चाहिए। अगर आपको एक स्टोरी याद हो तो शायद क्लास 9th में आपने एक स्टोरी पढ़ी थी जिसमें एक बच्चा मेले में जाता है और बहुत सी चीज़ें मांगता है, ये चाहिए वो चाहिए मुझे ये, और पेरेंट्स उसको मना करते रहते हैं। ऑल ऑफ अ सडन उसके पेरेंट्स मिस हो जाते हैं और उसके बाद वो क्या कहता है कि उसको कुछ लोग बच्चा उनसे मिल जाता है, उसको बहलाने के लिए कहते हैं कि आप मिठाई ले लो, ये ले लो, वो ले लो, बट वो क्या कहता है कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे वापस मेरे पेरेंट्स ही चाहिए। मुल्क राज आनंद की स्टोरी है ये। तो एक जो पेरेंट्स के लिए जो अटैचमेंट होता है बच्चों का, वो अटैचमेंट किसी भी स्टेज पर ख़त्म नहीं होता है, वो बना रहता है। और वही फियर, वही अटैचमेंट राइटर के मन में फिर से आता है कि कहीं मैं अपनी माँ को खो तो नहीं दूँगी। लेकिन लास्ट में राइटर ये कह रही कि हाइडिंग आउट ऑल हर पेन, ऑल हर एक, शी स्माइल्ड एंड सेड सी यू सून अम्मा। वाई डिड शी डू सो? बिकॉज शी न्यू इफ हर मदर कम्स टू नो द पेन ऑफ हर, she'll never be able to rest properly. She'll always be thinking, she would always be thinking, what went wrong? Why my child was not happy? Why my child was not smiling? So that is what she wanted to hide. She did not want to disturb her mother. She wanted her mother should go back to home with a happy face and happy mind and should relax properly. लास्ट में एक बहुत इमोशनल एंड पर राइटर ने, पोएटस ने स्टोरी, इस पोएम को छोड़ा है कि वहाँ से वो अपने फेयर को, अपने पेन को, अपनी मदर के कंसर्न को, जो उनके दिमाग में कंसर्न है, उसको हाइड करते हुए, छुपाते हुए एक स्माइल के साथ फेयरवेल करती है अपनी माँ का, सी यू सून अम्मा बोल करके निकल जाती है। सो एक बहुत अच्छी सी पोएम है ये, जिसमें एक मिडिल एज वुमेन अपने उस एक रिस्पॉन्सिबल लव को शो कर रही, क्योंकि जो बचपन का प्यार होता है उसमें शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है पेरेंट्स के प्रति, लेकिन जब हम मेच्योर हो जाते हैं, मिडिल एज में पहुंच जाते हैं, तो एक रिस्पॉन्सिबल फीलिंग जनरेट हो जाती है। उसको यहाँ पे राइटर पोएटस ने शो किया है और बहुत खूबसूरत पोएम है। आई होप you all must have enjoyed it. So that is all from my side in this video. We'll see in the next. First what I'm planning is to do students is कि मैं सबसे पहले जितनी पोएम्स हैं उनको कवर कर लूँगा। आपकी जितनी भी रिड्यूस सिलेबस में पोएम बची हुई हैं हम पहले उन्हें कवर कर लेंगे, उसके बाद हम थ्योरी की तरफ चलेंगे और थ्योरी लेसन्स को भी कवर करेंगे, उनको भी 1 by 1 पढ़ेंगे। So thank you very much for being with me. All the best. Have a nice day.